nephrons, they are located inside the kidney because they are the structural and functional unit of the kidneys. So what happened that this is called as efferent arteriole. Afferent arteriole. Afferent arteriole means through which blood goes inside the kidney, inside the nephron, and this fenestrated, mesh-like, tuft of capillaries that we call glomerulus. Glomerulus. Glomerulus, what it is, as I told, I give the definition of it. It is a tuft of capillaries, mesh of capillaries, we can say, or fenestrated mesh of capillaries. So what happened in the capillaries? Capillaries, what is exchange? Because they have thin membrane, they have pores in this structure through which the maximum ultrafiltration takes place. Okay, and this is called as glomerulus is a mesh of capillaries, and this glomerulus is being guarded by a cup-shaped structure, and that very cup-shaped structure is called Bowman's capsule. Okay, it was a Bowman, the one who invented, put to first time side. His name was Bowman. That's why it's called as Bowman's capsule. Bowman's capsule. I'm going to repeat it for you so that you memorize the name. Okay? And after that, this when there is filtration of waste, water, even some nutrients, they go into this. The first part of the Bowman's capsule, that's called a PCT, proximal convoluted tubule. I write the name. That's called as PCT. Because I will not write down the full name because yesterday I mentioned. Proximal convoluted tubule. Proximal is first. Convoluted is a convoluted shape and tubule, the tubular. Is it? Now, and the waste goes here and the rest blood, as I told you, which RBC, WBC, protein, they go through efferent arteriole. They come through efferent arteriole. Efferent means inside, efferent means leave. Efferent means अंदर जाना, excited, efferent means बाहर. अच्छा, समझा? उसके बाद ये यहाँ से चला जाता है. इसको क्या बोलते हैं? हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर. ये हेयरपिन जैसा होता है ऐसे. जैसे हेयरपिन हो गया ऐसे. That's called as loop of Henle. तो क्या बोलते हैं बेटा? Loop of Henle. A loop of Henle. And when this proximal convoluted tubule it descends, it goes down. That is called a descending limb. तो क्या बोलते हैं? Descending limb. ये नीचे है ना इसका descending पर कम. As you read in the map, descending border, ascending border. It's called a descending limb. तो क्या बोलते हैं? Descending. It's called a descending limb. And it's called a loop of Henle. It's a unique shape. Or we can say hairpin-like structure. That's called a loop of Henle. And this, after this loop of Henle, it goes up. That very structure is called as ascending limb because the limb goes up, ascend. It rises up. That's called as ascending. And finally, it enters one more part of the nephron. That's called as a DCT. What will be the DCT? Distal. Distal means the extreme one, the last one, the terminal one, the tail. That's called as the distal convoluted tubule. And finally, this urine, it enters into this duct. This नाली कैनाल जैसा structure में आता है, जिसको हम बोलते हैं collecting duct. इसको क्या बोलते हैं बेटा? Collecting duct. That's called as collecting duct. And finally, through this collecting duct, it opens into the renal pelvis. It opens into the renal pelvis. Here, renal pelvis. This is your nephron, and finally this enters the renal pelvis, and renal pelvis opens through the
hilus of the kidney, and finally go to the ureter, then the ureter, and finally to the urethra, and you go to remove the urine outside of the body. That is what is the mutation. What is mutation? That is when you remove the this urine from the urinary bladder. Is it better? So the question is that the guy he asked me that, sir, you said that the total capacity of urinary bladder it is 600 to 800 is mentioned in the book. But I have read from one more source, it is 1100. Okay, 1000 to 1100. And I told you that it is capacity varies. It varies from person to person. Because a normal person, some are tall. The person who are tall, their urinary bladder is long. Urinary bladder is wide and long compared to the short people. Is it? And most in case of children, it's very small. No. अब ये बड़ा जब यहाँ से ब्लड आता है, जब यहाँ से ब्लड आया, so blood means जो मैंने वो सारे constituents I talked about yesterday. So what passes through this mesh-like structure that is called as glomerulus? I said there are pores in it. Okay, there are pores in, and the pores, this material it exchanges, it transfers, it goes into what? It goes into Bowman's capsule. So what crosses this barrier? Waste. What crosses? Waste. And rest of the food, like the nutrients, like the proteins. और यहाँ से कौन आता है? डिफरेंट आर्टियों से क्या करें? इसमें आरबीसी होती है, आरबीसी पास आउट होती है, डब्ल्यूबीसी पास आउट होती है, प्लेटलेट्स पास आउट होती है, और दूसरी प्रोटीन्स पास आउट होती है. वो कहाँ से आते हैं? यहाँ से. और उसके बाद ये जो ब्लड है ना, ये इसके पैरेलली चलता है ऐसे. किसके? नेफ्रॉन के पैरेलली. ये किसे? डिफरेंट आर्टरियों से पैरेलली चलता है. फिर यहाँ से और भी कुछ चीजें होते हैं. फिर यहाँ से फाइनली यहाँ से वो बाहर आ जाता है थ्रू रिनल. ब्लड कहाँ से आता है? इट्स ए प्यूरिफाइड. इसमें टॉक्सिन नहीं होते. वो बाहर ये रिनल वेन से आता है और बॉडी को सप्लाई करते हैं. बिकॉज मेन पर्पस क्या है किडनी का? टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट. अब वो कैसे होता है? सो फर्स्ट प्रोसेस मैंने बोला इसमें क्या होता है? दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा filtration of the kidney, or we can say filtration or glomerular filtration. Glomerular filtration, or we can say glomerular filtration. What happened during this? What happened during glomerular filtration? So it's very big comment. Start. What happens from the glomerular filtration? That certain toxins, waste, and some food items that cross glomerulus to the Bowman's capsule. अब उनको सब पास होता है इसे पास होता है अमोनिया, यूरिया, some glucose, is it? And uric acid and creatinine. Drugs that crosses the glomerulus to the Bowman's capsule. So when waste and some nutrients pass by glomerulus to Bowman's capsule. To Bowman's capsule is called a glomerular filtration. It's called a glomerular filtration. Because this filtration is done by the glomerulus. This filtration is done by the glomerulus. So which waste is? Ammonia is waste, urea and some glucose. तो मतलब ये क्या करता है? इनको मतलब एक्सक्रीट करके, इसको मतलब सीव करके, मतलब फिल्ट्रेट करके इसके साथ ग्लूकोज भी चला जाता है, वाटर भी चला जाता है, केराटिनिन भी चला जाता है. केराटिनिन एक्चुअली मसल्स में बनता है.
मसल्स में बनता है और एक्चुअली पहले क्रेटीन, फिर ये बनता है कहाँ पे, बॉडी में बनता है एसोफेज, फिर इसको मसल्स में चेंज किया जाता, सॉरी लिवर में चेंज किया जाता है जिससे क्रैक्स नहीं, ये फाइन जाता है किडनी के पास, किडनी इसको रिमूव करता है, इसको क्रैक्टिन एंड ड्रग्स एंड सम ड्रग्स। सो ये रिमूव होते कहाँ से, ये पास होते फ्रॉम ग्लैंडुलर टू व्हाट, no need to speak, no need to speak or to learn about the which membrane is which covers the part. इसके पोडोसाइट्स होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, कॉलोइड फिल्म होता है, वो मत करो। उसके बाद जब इसमें चला जाता है किसमें, एसेंडिंग में, वो जो बाकी जो है, जो मैंने बोला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन, दैट पास थ्रू द ब्लड, एंड दैट इज पास थ्रू द ब्लड। आप देखो बेटा, आप इसमें ये जो क्या है बेटा, ये है डीसी, ये डीसीटी में, आप देखो बेटा, सॉरी पीसीटी में क्या होता है, जब ये ट्रेन कहाँ पे पहुंच जाता है, पीसीटी। अब पीसीटी में क्या आ गया, ये सारा कुछ, ये बोलता है अरे यार मैंने तो इसको यहाँ तक पहुंचाया, मैं इसको फिल्ट्रेट किया, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये बोलता है यार ग्लूकोज यहाँ पे रहते हैं। अब कुछ चीजें फिल्ट्रेट से वो दोबारा चले जाएंगे किसमें, किसमें चल जाएगा, ब्लड में, यानी कि ये ना ब्लड सारा इसके पाले चलता है। अब डीसीटी में कुछ चीजें जो अच्छी चीज के हैं, लाइक कौन, ग्लूकोज, और देखो आप कुछ अमीनो एसिड जो एज ए वेस्ट निकल गया, कहां से, ग्लोमेरुलस से, कहां से, होमेस कैप्सूल में, वो बोलता है कि ब्लड बोलता है ये तो अच्छी चीज की चीज है, कौन कौन, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज, तो इनको मैं दोबारा क्या एब्जॉर्ब करूं। अब क्या होगा बेटा, यहां से यानी कि पीसीटी से कुछ चीजें वो दोबारा चले जाएंगे किसमें, ब्लड में। जब ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सम वाटर, इट गोज बैक इनटू द ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। या तो क्या बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को वो उसको वेस्ट नहीं करेगा, क्यों, ये अच्छी चीज है, ग्लूकोज एनर्जी देगा, यानी कि फिल्ट्रेशन के टाइम पे जब ये सारे वेस्ट बाहर निकल रहे थे, उसके साथ साथ ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स भी क्या निकल गया, किसमें आया, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंट ट्यूब्यूल। अब ब्लड से क्या होगा, ब्लड बोलता है कि इनको मैं भेजूंगा अपने साथ, तो अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, जब पीसीटी से कुछ चीजें यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वो किसमें आ जाएगा, ब्लड में, किसमें आ जाएगा, ब्लड में, ताकि ब्लड को सर्कुलेट करके सेल्स में चला जाए, that is called as tubular reabsorption. देखो second point was first, second is tubular reabsorption. That is called as tubular reabsorption. That is called as tubular reabsorption. Now listen, what is tubular reabsorption? ट्यूब्यूलर एब्जॉर्प्शन मतलब ट्यूब्यूल में, ट्यूब्यूल से कुछ रीअब्सॉर्ब होता है, वो दोबारा जज़ब होता है, किसकी तरह, ब्लड, समझा, लिखो मैंने इसका लिखो, when some the reabsorption of when some nutrients gets reabsorbed, when some nutrients like like glucose, amino acids, gets reabsorbed from PCT to blood, समझा, जब यहां से लो, यहां से ट्यूब्यूल से यानी कि प्रॉक्सिमल कंप्लीट ट्यूब्यूल से जब कुछ न्यूट्रिएंट्स वो पास आउट होते हैं इनटू व्हाट, इनटू द ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर। अब ये वेस्ट, अब ग्लूकोज भी वापस चला गया, अब यहां पे चला है नीचे लूफा फैली में,
डिसेंडिंग लिवर एसेंडिंग। और इसमें क्या होता है लूफा फैली में, यहाँ पे क्या होता है बेटा, अब बात सुनो, यहाँ पे अब क्या होगा, वाटर बैलेंस मेंटेन रखनी पड़ती है। क्या रखनी पड़ती है? मेंटेन। क्या रखनी पड़ती है बेटा? वाटर। सो कुछ वाटर वो क्या होता है बेटा, वो ब्लड से चला जाता है किसमें, वो ट्यूब्यूल से चला जाता है किसमें, ब्लड में। तो लूफा थैली में क्या होता है, कुछ वाटर वो किस में चला जाता है, लूफा थैली में, ताकि 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 लूफा थैली में वाटर की बैलेंस बराबर रहे, वाटर की बैलेंस बराबर है। उसके बाद ये फिल्टर चला आता है किसमें, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। किसमें होता है बेटा, सॉरी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, वहां पे होता है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। थर्ड वन क्या होगा बेटा, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। अब क्या हुआ, वहां पे था ट्यूब्यूलर एब्जॉर्प्शन, यानी कि ट्यूब से कुछ निकलता था, अब ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, अब ट्यूब भी कुछ सेक्रेट करता है। किसमें, एक सेकंड, पहले क्या होता है ट्यूब्यूलर एब्जॉर्प्शन, यानी कि ट्यूब से कुछ क्या, यहाँ से कुछ ब्लड की तरफ जाता था। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ चीजें वो ब्लड से ही किसमें आएंगे, किसमें, ट्यूब में, यानी कि डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब, लाइक अमोनिया, लाइक अब कुछ चीजें आएंगे किसमें, ट्यूब में, लाइक अमोनिया NH3, लाइक हाइड्रोजन H+2, लाइक पोटेशियम। ठीक है बेटा, अमोनिया, यूरिया। अब क्या बोलते हैं, बोलता है कि ब्लड में कुछ रहा है, ब्लड में कुछ बेच रहा है। जब यहाँ देखोगे पहले फिल्ट्रेशन हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसमें मैंने बोला क्या फिल्टर हो गया, फिर है ट्यूब्यूलर एब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूलर एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, ट्यूब्यूलर एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, कुछ न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वो हो गए पास आउट फ्रॉम ट्यूब्यूल टू ब्लड। अब मैं बोले कि ब्लड में कुछ वेस्ट और है, कौन कौन रहा है हमारे पीछे, उसमें से यूरिया, हाइड्रोजन, पोटेशियम, यूरिया, दिस अमोनिया। अब उनको बाहर करना है, कहाँ से, ब्लड से लेके किसमें, ट्यूब्यूल में। वेरी गुड, देखो ये देखो, इन DCT, इसको बोलते हैं DCT, बोलते हैं इसको बोलते क्या बोलते हैं बेटा, DCT। अब DCT से कुछ वेस्ट, इन DCT some waste like NH3, NH3 means ammonia, urea, H+2, K+2, sodium, Na+2 इसकी फार्मूला है, इसकी सिंबल है। Good. In DCT some waste like ammonia, urea, H+2, K+2 gets absorbed from blood. Gets absorbed from blood. In order to purify blood. So blood को फर्दर प्यूरिफाई करेंगे। ये कुछ वेस्ट बचा हुआ था जो कहां से, किसमें था, ब्लड में।